हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द commerce.com। माई सेल्फ सौरभ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच concept believe that the market or consumer would absorb anything that would be produced by the manufacturer? Options are the given. First, selling; second, marketing; third, product; and fourth, production. करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है वो हमें एजम्पशन उसके अंदर एक होती है कि जितना भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया जाएगा वो मार्केट और कंज्यूमर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फॉर प्रोडक्शन। Now, second question, which of the following factor is not directly responsible for slowing down the growth of infrastructure? First option is the given high level of the perceived political risk, second high level of sunk cost, third high profitability of time and cost overrun, four introduction of competition in all sectors. So the correct option of this question will be option 4 introduction of competition in all sectors. Now, next question, which of the following is deferred revenue expenditure? Options are the given legal expenses incurred on the purchase of land, second, expenses on mega advertisement campaign which launching a new product, third, expenses incurred on installation of new machine, four, wages paid for construction of an additional room in the building. So the correct option of this question will be option second, expenses on mega advertisement campaign which launching a new product। और बाकी जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर के। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए किए जाते हैं, जो बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें बेनिफिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका एक्सपेंसेस ऑन मेगा एडवर्टीजमेंट कंपेरिजन विच लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी इन माइकल पोर्टर वैल्यू चेन? ऑप्शंस आर द गिवन फर्स्ट इनबाउंड लॉजिस्टिक, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फोर प्रोक्यूरमेंट। So the correct option of this question will be option 4 procurement. Next question, which of the following costing method usually compare the actual data which estimated data to arrived at our conclusion? So जब हम अपने actual data को estimated data के साथ compare करते हैं तो वो हमारा standard costing के अंदर आता है। So the correct option will be option 4 standard costing. Next question, which of the following method takes into consideration the time value of the money? Options are the given accounting rate of return method, second payback method, third accounting rate of return, four discounting cash flow. So the correct option will be option 4 discounted cash flow. 4. Next question, the ability of firm to use fixed financial charges to magnify the effect of changes in the EBIT on earning per share in otherwise termed as. Options are the given first combined leverage, second operating leverage, third long term leverage, fourth financial leverage. So the correct option will be financial leverage. Now move to the next question, in which year income tax was levied in the India for the first time? Options is a given 1962, second 1961, थर्ड 1860, फोर 1857। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड 1860। और जब हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की तो वो हमारा इनकम टैक्स एक्ट आएगा 1961। सो इस क्वेश्चन का लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड 1860, जब इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को लेविड किया गया था। Next question, agricultural income is taxable, not taxable, partially taxable, for none of these. Correct option will be not taxable under section 10(1).
अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। सो असर्शन इज द गिवन करंट रेशियो इज कंसीडर्ड बेटर देन क्विक रेशियो एज द मेजर ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। रीज़न गिवन है क्विक रेशियो एक्सक्लूड नॉन लिक्विड करंट एसेट। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखने से पहले असर्शन और रीजनिंग को ही अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद आंसर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं ईजिली। सो असर्शन में हमें कह रहा है कि करंट रेशियो जो है वो कंसीडर्ड किया जाता है क्विक रेशियो से बेटर लिक्विडिटी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, बट करंट रेशियो जो है वो क्विक रेशियो से बेटर नहीं है, क्योंकि करंट रेशियो में से हम माइनस करते हैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ताकि हमारे पास बिल्कुल लिक्विडिटी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे हाथ में बच सके। सो असर्शन तो इसके अंदर गलत है, क्योंकि क्विक रेशियो जो है उसकी लिक्विडिटी पोजीशन मेज़र करने के लिए बेटर है, ना कि करंट रेशियो की। सो असर्शन विल बी द रॉन्ग। रीज़न इज द गिवन क्विक रेशियो एक्सक्लूड नॉन लिक्विड करंट एसेट। रीज़न इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि क्विक रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो नॉन लिक्विड है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट में से। सो रीज़न इसका करेक्ट है। सो अगर हम ऑप्शन इसका 4 देखें, आर इज़ ट्रू बट ए इज़ नॉट, सो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ऑप्शन 4 is the correct option. Now move to the next question. Which one of the following accounting convention declared that contingent asset appear as a footnote in the balance sheet? Options are the given: materiality, second consistency, third disclosure, fourth conservatism. So इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आएगा डिस्क्लोजर, क्योंकि हर एक डिस्क्लोज़र जो है वो कन्वेंशन जो अकाउंटिंग का होता है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि हर एक छोटी से छोटी बात भी फुट नोट के ज़रिए हम अपने अकाउंटिंग के अंदर शो करेंगे। सो जो इसके अंदर फुट नोट की बात की गई है वो डिस्क्लोज़र से ही रिलेटेड है। तो एवरी इंफॉर्मेशन चाहे वो छोटी हो, रिलेवेंट हो या इरिलेवेंट हो, उसे नीचे फुट नोट में हम डाल सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डिस्क्लोज़र। मटेरियलिटी की बात करें तो ओनली जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसे ही हमने रिकॉर्ड करना है। ये मटेरियलिटी जो कन्वेंशन है वो हमें बताता है। कंसिस्टेंसी जो है वो हमें बताता है कि हमें सेम प्रिंसिपल को फॉलो करना है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, ताकि जो स्टैंडर्ड्स है हमारे वो सही से उसके ज़रिए हम अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकें। और कंजर्वेटिज़म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आएगा जो हमारे फ्यूचर प्रॉफिट है उसको हम ओवर एस्टिमेट ना करके अंडर एस्टिमेट करें, यानी कि कम वैल्यूज़ प्रॉफिट की शो करें, लोअर एस्टिमेट करें, ओवर एस्टिमेट ना करें। सो कंजर्वेटिज़म हमारा इससे रिलेटेड है अकाउंटिंग कन्वेंशन, बट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डिस्क्लोजर। थैंक यू। दिस इज़ अवर द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए।